Good morning, students and friends. This is Mr. Pizatitis from Salem classes. So, students, today our discussing topic will be of studies. It is an essay and written by Francis Bacon. So, in this video lecture today, we are going to discuss about the author means a short biography of Francis Bacon. Okay, so there are several parts, but today I will discuss about the author only, and rest of day we will discuss about other topics. Okay, so other points of this chapter. So this video lecture is for Bardhaman Mahavir Open University, Rajasthan. If any other universities or college adopted this chapter, so they can also, the student of that particular university or college, they can also get benefited from this chapter or from this lesson. So before entering to this video lecture, I would like to request you, if newly you are watching this video lecture, so I have a small request that if yet you haven't subscribed my channel, or please subscribe it and hit the bell icon also. As I mentioned, the discussing topic about the author means short biography of Bacon. Remember, this is unit 1 and from the book of prose and fiction EG02 for Bardhaman Mahavir Open University BA first year. So then let's begin. Okay, so as I told you, I will discuss with you biography of the chapter. So here I am scrolling it and just you have to wait for a little while. Okay, about the author. Okay, so I will take it a little bit zoom, that it will be very easy for you to understand. Okay, I think it is good, na? Otherwise little bit short. Okay, that's good. Francis Bacon was born in January 22, 1561 इन लंदन. तो यहाँ पे फ्रांसिस बैकन का जन्म के बारे में बताया जाता है कि उनका जन्म जो है जनवरी 22, 1561 में होता है, जो कि लंदन में. His family was very powerful and very close to Queen Elizabeth. His father, Sir Nicholas Bacon, was Lord Keeper of Great Seal. His mother was daughter of Sir Anthony Cook and sister-in-law of Sir William Cecil, the Lord of Burghley. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि उनका जन्म जो है और जनवरी 22, 1561 को होता है लंदन में. उसका फैमिली जो है बहुत पावरफुल था और ख़ास करके उसका जो फैमिली है क्वीन एलिजाबेथ के साथ ताल्लुक़ रखने वाले एक फैमिली था. उसका फादर जो है उसका नाम है निकोलस बैकन, जो कि लॉर्ड कीपर के रूप में ग्रेट सील में तैनात थे. और उसका मदर जो है वो सर एंथनी कुक का वो क्या थे, डॉक्टर थे. और साथ ही साथ केवल उतना ही नहीं बल्कि साथ ही साथ वो सर विलियम सिसिल जो लॉर्ड बर्गले में थे उन्हीं के वो सिस्टर इन लॉ भी लगते थे. कौन? उनका मदर लगती थी.
He was a protected child. His early childhood was spent his father's country place. He was devoted to studies in a grave manner even at the tender age of 10. He was sent to Trinity College, Cambridge with his elder brother at the age of 13. He came back after 3 years and was then admitted to Grace Inn on January 27, 1576. तो उनके जो बचपन जो है बहुत ही प्रोटेक्टेड में रहा और विशेष करके बचपन की अवस्था में ही है ना। सो उनके जो बचपन का जो समय है अपने पिता के जो कंट्री प्लेस है वहाँ पर ही बिता है और बचपन से लगभग 10 साल की उम्र में ही उसको पढ़ने के लिए एक डिवोटी करके रखा गया, यानी पढ़ने के लिए। और इनको बहुत ही क्या कह सकते हैं, उनके ऊपर बहुत ही दबाव रहा, उनको पढ़ने में रुचि रखने के लिए बहुत सारे कदम का अपनाया गया। तो जैसे कि हम देखते हैं कि और उनको अपने भाई के साथ एल्डर ब्रदर जो है उन्हीं के साथ जब बैकन का उम्र 13 था तभी उनको ट्रिनिटी कॉलेज जो कैम्ब्रिज में है वहाँ पर भेजा जाता है। फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके 3 साल के बाद वो वापस आते हैं और वापस आकर के ग्रेस का जो इन है, ठीक है, शुद्ध ऐसे हिंदी में ट्रांसलेशन करें, इनका मतलब धर्मशाला होता है, लेकिन इसको हम कोई एक ऑफिस भी समझ सकते हैं, कोई एक कार्यालय भी समझ सकते हैं। और जहाँ पर वो जून 27 और 1576 में आकर के वहाँ पे वो अपने कार्यभार को संभालते हैं। Only after a few months, not liking the legal profession, he went along with मतलब कुछ साल के बाद, कुछ ही महीने के बाद ही ये लीगल वाले जो प्रोफेशन है उसको वो पसंद नहीं किया और पसंद ना करके वो फिर चले जाते हैं एक इंग्लिश एम्बेसडर के साथ फ्रांस में। द इंग्लिश एम्बेसडर टू फ्रांस एंड थोस बिगन हिज कैरियर डिप्लोमेसी, ठीक है, एक कूटनीतिज्ञ के रूप में फिर वो फ्रांस में काम करने लगते हैं, एक इंग्लिश एम्बेसडर के पास वहाँ पर चले जाते हैं। आफ्टर हिज फादर्स डेथ ही केम बैक टू इंग्लैंड एंड अगेन जॉइंड ग्रेस इन 1584 he entered the parliament as representative of माल्कम रेंस। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, पिता की मृत्यु के बाद वो फिर से वापस इंग्लैंड में आते हैं और आने के बाद उसी ग्रेस का जो इन है वहाँ पे वो क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। फिर हम उसके बाद देखते हैं कि 1584 में वो एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, माल्कम रेंस का एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वो पार्लियामेंट में चुने जाते हैं। He was again elected for parliament in 1586 and 1589. He advocated for middle course between popular privilege and royal prerogative, modernization in a secular reform with tolerance इन रिलीजन। तो यहाँ पे 2 बार वो फिर से क्या करते हैं कि पार्लियामेंट में इलेक्टेड होते हैं, एक तो 1586 में और एक 1589 में। लेकिन इसी बीच ये मानवीय अधिकार को लेकर के और रिलीजियस टॉलरेशन को लेकर के ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी बीचवाई कर रहे हैं। This policy he supported to pamphlet published in 1585 and 1589। उनकी जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को पम्पलेट के रूप में वो पब्लिश करते हैं, जो 1585 में और 1589 में। इन बोथ ऑफ देम he pleaded for greater elasticity in matter of doctrine and discipline। तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों
जो वकालत वो थोड़ा लचीलापन हो जाता है, जैसे कि मत के ऊपर और व्यवस्था के ऊपर। ये हो सकता है ये सरकारी व्यवस्था के ऊपर या सरकारी सिद्धांतों के ऊपर। In 1591, Bacon attached himself Earl of Essex, और 1591 में वो क्या करते हैं कि Earl of Essex के साथ जुड़ जाते हैं, who was very close to Queen Elizabeth, जो कि क्वीन एलिजाबेथ के बहुत नज़दीक थे। In 1593, Bacon entered the Parliament from Middlesex। उसके बाद फिर बैकन जो है पार्लियामेंट का जो मिडिलसेक्स में एंटर करते हैं, कब वो 1593 में। ही severely criticized the government policy of demand of triple subsidy to help meet the expenses of Spanish War। तो जैसे कि वो गवर्नमेंट के जो स्पेनिश वार के प्रति जो बहुत ही खर्चा हो रहा था, है ना, उसी बात के प्रति वो क्या कर रहे थे कि विशेष रूप से वो अपना मतलब मंतव्य को दे रहे थे, मतलब गवर्नमेंट के पॉलिसी को वो जो ट्रिपल सब्सिडी को डिमांड कर रहे थे। इन सभी की बातों को लेकर के मैं थोड़ा सा इस लाइन को और एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि ही सिवियरली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पॉलिसी, वो बहुत ही बुरी तरह से क्या करते हैं, गवर्नमेंट को जो पॉलिसी है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। ऑफ डिमांड फॉर ट्रिपल सब्सिडी टू हेल्प मीट द एक्सपेंस ऑफ स्पेनिश वार, यानी वो ट्रिपल सब्सिडी को क्या करते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं, और साथ साथ जो हेल्पिंग ऑफ एक्सपेंसेस द स्पेनिश वार है इसी के प्रति वो ध्यान देते हैं। द क्वीन वाज अनॉयड एंड डिड नॉट अपॉइंट हिम अटॉर्नी जनरल इन 1594। तो इस बात से लेकर के जो क्वीन नाराज़ हो जाती है और उसको महाविचारपति न्यायपति के रूप में वो उसको 1594 में और इजाज़त नहीं देती, यानी अपॉइंटेड नहीं करती। The Earl of Essex always tried to favor the make recommendation for Bacon, but the Queen paid no need to them। यानी यहाँ पर ऐसा होता है कि अर्ल ऑफ एक्सेस ये हमेशा एक अच्छा रिकमेंडेशन देता है बैकन के बारे में, लेकिन क्वीन रानी जो है वो उसके बारे में कोई ध्यान नहीं दे रही है। Somehow he was made Lord Counsel, और बैकन played a major role in securing Essex conviction when he was being tried for treason. As a result of his conviction, Essex was executed. Bacon interrupted much ill feeling for this in 1604 he published a apology for this section। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ पे देखते हैं कि रानी जब उसके फेवर में नहीं रही, ठीक है, रानी जब उसकी फेवर में नहीं रही, ये बात को लेकर के कुछ इल फीलिंग महसूस वो करते हैं, और करने के बाद एक ऐसे को पब्लिश करते हैं जो कि अपोलॉजिस, जो अपने ऊपर के क्रियाक्रम के ऊपर एक क्षमा याचना, एक माफ़ी याचना के रूप में एक ऐसे को वो क्या करते हैं 1604 में वो पब्लिश कर देते हैं। द फर्स्ट एडिशन ऑफ हिज ऐसे वाज पब्लिश्ड इन 1597। फर्स्ट एडिशन जो है 1597 को उनका ऐसे पब्लिश्ड होता है। इट हैज 10 एसेस, जो कि पूरे 10 एसेस था। इट्स ए पॉपुलैरिटी वाज ग्रेट ऑलमोस्ट फ्रॉम वेरी डे ऑफ इश्यूज। इसका जो पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद फिर हम देखते हैं कि 1603 में किंग जेम्स असेंडेड टू इंग्लिश थ्रोन। तो किंग जेम्स अभी यहाँ पे इंग्लिश थ्रोन में आ जाते हैं, यानी वो यहाँ के शासक बन जाते हैं। बैकन ट्राइड टू win the new king's favor by every wit he could employ. He was ultimately successful and managed to get knighthood in July 1603। तो जैसे
इंग्लिश थ्रोन में और किंग जेम्स वन आ जाते हैं तो किसी भी तरह से वो क्या करते हैं, राजा को मोहित करने के लिए कोशिश करते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। और आगे चल कर के जो नाइटहुड नाम का जो विभाग है उसी में उनको मैनेज करने के लिए उनको अपॉइंट किया जाता है, जो कि 1603 में। In 1604 he was confirmed as Lord Council and in 1607 become सॉलिसिटर जनरल। फिर उसके बाद दो प्रकार का पद भी उसको 1604 में और 1607 में मिलता है। एक कन्फर्म्ड आस लॉर्ड काउंसिल के रूप में और एक सॉलिसिटर जनरल के रूप में, जो 1607 में उसको मौका मिलता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं इन 1605 बैकन पब्लिश्ड इज एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। फिर 1605 में वो अपने जो एक एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग को पब्लिश करते हैं और इसे डेडिकेट कर देते हैं किंग को। दिस ग्रेट फिलोसॉफिकल वर्क वाज लेटर एक्सपेंडेड एंड ट्रांसलेटेड इन लैटिन। यानी ये जो फिलोसॉफिकल वर्क है आगे चल कर के उसको क्या किया गया है कि लैटिन भाषा में उसको ट्रांसलेशन किया गया है। In 1606 Bacon got married to Alice Branham, daughter of a London alderman। फिर उसके बाद उसके जो विवाह 1606 में हो जाता है एलिस बारमैन के नाम से, ब्रानहम के नाम से एक लड़की के साथ, जो कि इंग्लैंड के एक एल्डरमैन का लड़की थी। इन 1607 and 1612 new edition of his essay was published with several edition। फिर 1607 में 1612 में नए एडिशन उसके ऐसे का पब्लिश्ड हो जाता है, बहुत सारे एडिशन को लेकर के, जैसे कि कोगिटाटा एट विशा ये एक है, इन फेलिशन मेमोरिशम एलिजाबेथन एंड वो एक एलिजाबेथ का मेमोराइज को लेकर के बहुत अच्छी ऐसे को उन्होंने रचना करी। डी सपेंटिया और पेट्रम एंड विजडम ऑफ एंशिएंट वेर पब्लिश्ड बिटवीन 1607 एंड 1609। इस प्रकार से 1607 में और 1609 में ये सभी ऐसे को पब्लिश किया गया। In 1613 he was made अटॉर्नी जनरल। 1613 को उनको एक अटॉर्नी जनरल के रूप में स्थापित किया जाता है, जो पार्लियामेंट में। ऑफ 1614 ही सैट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बैठ जाते हैं। फ्रॉम 1612 ऑनवर्ड हिज काउंसिल डिड नॉट अटैक हिज अटेंशन एंड he was in process of being marginalized, but become soon made of his descending position and become Lord Keeper in March 1617। फिर उसके बाद वो मार्च 1617 में वो लॉर्ड कीपर के एक पद में विराजमान होते हैं। In January 1618 he was appointed Lord Chancellor। in July 1618 he was made Baron Verulam। further honor was conferred upon him in January 1621 when he was created Viscount St Albans। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार का पद में वो 1617 में 1618 में 1617 के बारे में बताया था। 1618 में वो लॉर्ड चांसलर के रूप में वो आ जाते हैं और साथ ही साथ 1618 में वो एक बैरुलम नाम का पद में आ जाते हैं, वो खुद बनाते हैं और उसके बाद इस प्रकार से वो आगे बढ़ते हैं।
So the parliament met after 7 years, and his enemies seized the opportunity to bring a charge of bribery and corruption against Bacon. He was found guilty after considerable discussion. The House of Lords passed sentence against him on 3 May 1621. The sentence was, however, not fully carried out, but he was barred to sit the parliament. तो कुछ दोष उसके शत्रु लोग के द्वारा पाया जाता है जब वो पार्लियामेंट में थे, जैसे कि घूसखोरी या फिर करप्शन, इस प्रकार के बातें जब वो साबित हो जाता है, साबित होने के बाद उनको पार्लियामेंट हाउस में और नहीं बैठने की कहा जाता है, यानी एक प्रकार का सेंटेंस, यानी इस पर एक प्रकार का दंड उनको होता है कि वो पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे। The remaining 5 years of his life were spent in work more valuable to the world than anything he had accomplished in a high office. तो जैसे कि ये जो आगे के जो 5 साल है, यानी जब उनको निकाल दिया गया कुछ समय के लिए, आगे के जो 5 साल है, ये जो 5 साल में वो और भी बहुत सारा कार्य मतलब अपने लिटरेरी वर्क के लिए वो कर लेते हैं। जैसे फ्रॉम द लिटरेरी एंड फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, दिस लास्ट पीरियड वाज इंडीड द मोस्ट प्रेशियस। तो ये फिलोसॉफिकल पॉइंट के आधार पर देखें तो आखिरी का जो ये समय था ये बहुत ही प्रेशियस था, उनके लिए बहुत ही कीमती था। एंड स्मिटेड बाय हिज डिस्ग्रेस, he turned with much eagerness to intellectual pursuit that he has been interrupted by his official duties. अपने ऑफिशियल ड्यूटीज़ को ना होने के साथ भी वो और कुछ बेहतरीन काम करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं उनके रिटायरमेंट के बारे में। his retirement from politics enabled him indeed to make his literary reputation more firm and enduring। जैसे पॉलिटिकली से उनको रिटायरमेंट मिल जाता है, मिलने के बाद वो अपनी जो राइटिंग वर्क को और भी मतलब क्या करते हैं, और भी तेजियान कर देते हैं। ही डिवोटेड हिमसेल्फ विथ अमेजिंग एनर्जी टू लिटरेरी एंड साइंस। फिर उसके बाद वो लिटरेरी और साइंस के प्रति ध्यान देते हैं, अपनी पूर्ण ताकत उसमें लगा देते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही प्रोड्यूस्ड हिस्ट्रीज डे आर्गुमेंट, न्यू अटलांटिस एंड द फाइनल एडिशन ऑफ एसे विथ कंटेंट 58 एसेस। लगभग 58 ऐसे को उन्होंने एडिट किया, 58 ऐसे को उन्होंने लिखा। और खाली उतना ही नहीं बल्कि वो साइंस के प्रति और लिटरेचर के प्रति थोड़े इन समय में विशेष रूप से ध्यान देने लगे। In March 1626, while traveling near Highgate in London, he performed an experiment which was an anticipation of the modern process of refrigeration, but it caused his death। कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि 1626 को उनकी मृत्यु हो जाती है एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के दरमियान। वो क्या था हम उसको अभी पढ़ के देखते हैं। He decided to discover whether snow would delay to process of putrefaction. He stopped his carriage and forced a hand, and with his own hand stuffed it with snow. As a result, he caught a chill and fever. He was taken to the house of the Earl of Arundel, where he died on April 9, 1626। इस प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट के दरमियान क्या होता है कि उनको ठंड लग जाता है और बुखार चढ़ जाता है, और हालांकि उनको अर्ल ऑफ
अरुंडिल नाम की जगह पे लिया जाता है, लेकिन अप्रैल 9, 1626 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और जैसे कि उनकी जो समाधि यानी उनको कवर किया जाता है सेंट मिखाइल चर्च सेंट आल्बान नाम की जो जगह है, और जो सेंट मिखाइल चर्च में उनको क्या किया जाता है, उनके जो कब्रिस्तान है वहाँ पे उनको कवर दिया जाता है। तो इनकी जो कुछ अच्छी बात भी है उनके जीवन में, और कुछ बुरी बात भी है उनके जीवन में। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि पोप कॉल्ड आस ए वाइसेस्ट। पोप को तो बहुत ही पोप जो है बैकन के बारे में वो ब्राइटेस्ट कहते हैं, है ना। बैकन जो है इंटेलेक्चुअल ग्रेट बट मोरली वीक। इंटेलेक्चुअल के रूप में वो बहुत ही ग्रेट थे, लेकिन अगर मोरालिटी के बारे में कहे, सामाजिक तौर तरीका उनके जीवन के बारे में कहे, तो वो बिल्कुल क्या कह सकते हैं, और बहुत ही गलत थे। इस प्रकार उनका मोरालिटी बहुत वीक था। तो यहाँ पे पोप क्या कहते हैं, पोप कॉल्ड हिम आज द वाइसेस्ट ब्राइटेस्ट बट मीन्स ऑफ मैनकाइंड। लेकिन वो आखिरी में यही कहते हैं कि बैकन तो रियलिटी में बहुत वाइसेस्ट व्यक्ति थे, ग्रेटेस्ट व्यक्ति थे, सब कुछ था, लेकिन फिर भी मैनकाइंड के रूप में, एक इंसानियत के रूप में वो एक घटिया व्यक्ति थे। इस प्रकार वो उनके बारे में क्रिटिसाइज करते हैं। बाकी जो हम देखें कि वो अपने जीवन काल में लॉयर के रूप में, पॉलिटिशियन के रूप में, साइंटिस्ट के रूप में, फिलोसोफर के रूप में, हिस्ट्रियन के रूप में, एथियस्ट के रूप में, ये सभी के रूप में उन्होंने कार्य किया, और ये सभी ज्ञान जो है उन्होंने अपने जगह पर ही उन्होंने प्राप्त किया है। तो कुछ वर्क हम उनका इस प्रकार देख सकते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट ऑफ लर्निंग, हिस्ट्री ऑफ हेनरी VII, ऐसे जो है ये 1597 से लेकर 1612, 1625, द न्यू अटलांटिस जो डेट यहाँ पे देख सकते हैं, मैग्ना और नोवम ऑर्गेनियम, इन सभी ये 4 वॉल्यूम से है। फिर मैग्ना इंट्रोड्यूशन ये 6 वॉल्यूम में है। इंस्टा रेट्यो, ठीक है, ये 6 वॉल्यूम में। चश्मा का नंबर थोड़ा कम हो गया, इसलिए ढंग से नहीं दिख पाता है, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। तो चलिए, जैसा भी है, अब हमने इनके जो बैकग्राउंड को देखा है, मैं मोटा मोटी तौर पर यही कह सकता हूँ कि ये व्यक्ति रियलिटी में बहुत टैलेंटेड था, बहुत ही बड़े बड़े पद में आकर के पार्लियामेंट में बैठा, लेकिन इनके मोरालिटी के बारे में जब देखा जाता है तो बड़ा वीक नज़र आता है। तो यही था उनका एक छोटा सा बैकग्राउंड। फिर आगे चल कर के हम ऐसे के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसका क्रिटिसाइज, एनालाइज, और साथ ही साथ उसका आगे जो भी कुछ है उसको हम डिस्कशन करेंगे। सो आज का वीडियो में ही इतना ही है। थैंक यू, may गॉड ब्लेस यू।